بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سب سے عظیم اور بڑی ہی بہترین نعمت اولاد ہے، اور اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو عطا کرتے ہیں تو اسلام بھی کچھ طور و طریقے اس کو سکھلاتا ہے کہ اولاد کے حاصل ہونے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہے، جیسے کہ اس کا اچھا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا اور اس کی تربیت کرنا۔ ایسے بہت سارے واقعات، ایسے بہت سارے چیزوں کو اسلام بیان کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو اولاد کی ذمہ داری، اولاد کے اوپر ہمارے لیے عائد ہونے والی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اولاد کے سلسلے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہے کہ اولاد کو ہم کیسی تربیت کرے، ہم ان کو کیسا بڑا کرے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دونوں پہلوؤں پر، ماں باپ ہے تو ماں باپ کے مقابلے میں اولاد کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، اولاد ہے تو اولاد کے لیے ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے کہ ماں باپ کے ذمے یہ ہیں کہ وہ اولاد کے سلسلے میں ان باتوں پر عمل کرے، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے سلسلے میں ان باتوں پر عمل کرے۔ دونوں کے لیے علیحدہ ذمہ داری کو بیان کرتا ہے اسلام، ہر ایک کی ذمہ داری کو الگ الگ بیان کرتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں جب یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو، یہ جب ماں باپ کے سلسلے میں بتایا گیا تو اولاد کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے دعائیں لو۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے سلسلے میں فرماتے ہیں اپنی عبادت کے بعد، اپنے مرتبے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے درجے کو بیان کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان کیا،
اسی میں سے ایک بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اب یہی بات جب ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا تو اولاد کو بھی بتاتے ہیں۔ اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب میں بڑا ذمہ دار ہوں، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، تو میرے ذمے ہے کہ میں خود بھی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچوں، جہنم میں جانے والے کاموں سے بچوں، اور خود اپنی اولاد کو بھی بچاؤں، میرے بچوں کو میں بچاؤں، میرے بچیوں کو میں بچاؤں، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دنیا میں رہنے والا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں یہ ذمہ داری تھی، تم نے کتنا عمل کیا، اس کو کتنا ادا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے سلسلے میں بہت سارے احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تم اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کو لے کر جاؤ، مسجد کو آنے جانے کی عادت اس کے اندر ڈالو، نماز کی عادت اس کے اندر ڈالو، اس کی تربیت کرو، مسجد کو آنے جانا والا بنے گا، اس کے دل میں اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات اس کے اندر بچپن سے ہی آ جائے گی۔ اب 15 سال 20 سال کے ہونے کے بعد مسجد کو لائیں گے تو التحیات کیا ہے نہیں معلوم، نماز کیا ہے نہیں معلوم، نماز میں کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے نہیں معلوم، ثنا کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، رکوع کس طریقے سے کرتے ہیں نہیں معلوم، سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ بچپن سے مسجد کو ہی نہیں آیا، بچپن سے مسجد کو لے کر ہی نہیں آئے والدین، کیونکہ ابھی بچہ ہے، بچے کو کیا معلوم، بچے کو کیا معلوم، بچے کو جلدی کیوں اٹھاتے ہیں، اس کو 8 بجے تک سونے دو، اس کو 9 بجے تک سونے دو، اس کو 10 بجے تک سونے دو۔ اب 20 سال کے بعد مسجد کو آ رہا ہے، اس کو تشہد میں بیٹھنے نہیں آ رہا، اس کو ثنا پڑھنے نہیں آ رہا، اب جا کر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کو جماعت میں بھیجو سکھ کرانے کے لیے۔ اب جماعت میں جا کر بھی آ گیا، 40 دن کے اندر 20 سال تک کا جو زنگ لگا ہوا ہے، 20 سال تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، 20 سال تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، اب یہ 20 سال کا 40 دن کے اندر کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ بچپن سے مسجد کو لاؤ، بچپن سے اس کو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، بچپن سے اس کے اندر نبی کی محبتوں کو پیدا کرو، نبی کے طریقوں کو پیدا کرو۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جتنا ہم غور و فکر کریں گے، بڑے ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، کیوں؟ والدین کے حقوق کو ہم نہیں بتائے۔ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے، باپ جنت کا ایک دروازہ ہے، ماں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت جس میں جانے کے طلبگار ہے، جنت میں میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جانا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنے والا ہر آدمی جنت کا خواہش مند ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعاؤں کو لو، باپ کی خدمت کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ معلوم نہیں، مسجد کو لائیں گے، اب اس کے اندر نماز کی عادت کو ڈالیں گے، اس کو دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، تمام چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ آج اولاد کے سلسلے میں، اولاد کو بگاڑنے میں، اولاد کو گناہوں میں مبتلا کرنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا دخل ہے۔ نماز کو اٹھانے کی طاقت ماں باپ کو نہیں ہے، بچے کو اٹھا کر مسجد کو بھیجنے کی طاقت نہیں۔ بچہ سوتا ہے 8-9 بجے تک، کتنے بھی بجے آ جائے، رات کو 9 بجے آئے، 10 بجے آئے، 11 بجے آئے، اس سے ہمارا لینا نہیں۔ اس کے دل میں ڈر کب سے ڈالیں گے؟ 20 سال میں ڈالنے سے ڈر نہیں آئے گا، 25 سال میں ڈر ڈالنے سے نہیں آئے گا۔ 7 سال کو بتایا ہے میرے آقا نے، 7 سال کا بچہ مکلف نہیں، 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں، 7 سال کے بچے پر روزہ نہیں، لیکن میرے آقا فرما رہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کو لے کر جاؤ، 7 سال کے بچے کو بلا لے کر جاؤ۔ اب اس کو لے کر جائیں گے، 7 سال کے بچے کو تھوڑا بہت کم کر دیے، 7 سال کے بچے کو لے کر جائیں گے، کیا ہوگا؟
7 साल के बच्चे को उसके दिल के अंदर मोहब्बत आएगी, रसूल क्या है, दीन क्या है, नबी क्या है, अल्लाह कौन है, तमाम चीजें उसको समझ में आएगी। ये 7 साल की उम्र में, हालांकि मालूम नहीं है उसको अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, नबी कौन है। अब 10 साल की उम्र आए तो मेरे आका ने फरमाया कि नमाज ना पढ़ने पर उसको मारो। 10 साल के बच्चे के लिए डर पैदा करने के लिए घर में एक लकड़ी रखो। बाप को, बच्चे को मालूम हो जाए कि मैं नमाज को नहीं जाऊंगा तो मेरे अब्बा मुझे मारेंगे, मैं नमाज को नहीं जाऊंगा तो मेरे अब्बा नाराज होंगे, मेरी अम्मी मुझे डांटेगी, मेरी अम्मी मुझे मारेगी, मुझे मार पड़ेगी। ये दिल के अंदर, बच्चे के अंदर कब से आना है? 10 साल के बच्चे के अंदर इसको पैदा करना है। 10 साल के बच्चा अभी बालिग नहीं, 10 साल के बच्चे के ऊपर कोई नमाज फर्ज नहीं। अब 12 साल 15 साल बालिग हो गया, अब उसको मालूम हो जाएगा कि भाई नमाज एक दिन में 5 मर्तबा फर्ज है, मुझे नमाज को जाना है। अब 7 साल से ही मस्जिद को लाएंगे, उसको मालूम हो जाएगा कि बड़ों के साथ कैसा रहना, छोटों के साथ कैसा रहना, मां बाप के साथ कैसा रहना, बाप के साथ कैसा रहना, मां के साथ कैसा रहना, बड़े भाई के साथ कैसा रहना, बड़ी बहन के साथ कैसा रहना, लड़कियों की कैसी इज्जत करना, बहन की कैसी इज्जत करना। ये मकातिब में, ये मसाजिद में, ये छोटी छोटी किताबों में सिखाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब 25 साल का हो जाता है, कमाने लग जाता है, अब बाप की नहीं मानता, अब मां की नहीं मानता, अब उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एक दरख्त है, उसको जब हम जमीन में लगाते हैं, जब तक वो छोटा है आप उसको निकाल कर दूसरी जगह भी रख सकते हैं, आप उसको जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब वो झाड़, वो दरख्त बड़ा हो जाएगा, अब उसको आप अगर मोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा। उसको आप ठीक नहीं कर सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको सीधा नहीं कर सकते, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अगर सही तौफीक दे दे तो वो अलग बात है। तो अपनी औलाद की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चियों की तरबियत बचपन से ही करना। कब से? 7 साल से। दीनदार घरानों में देखने को मिलता है 3 साल के बच्चे बच्चियां, 4 साल के बच्चे बच्चियां खाने पीने से पहले की दुआएं, बैतुल खला में जाने आने की दुआएं, तमाम चीजें सीख लेते हैं। अब हमारे घरों में क्या होता है, अक्सर बेशतर घरों में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग हो जाते हैं लेकिन नमाज़ें पढ़ने का तरीका तक नहीं आता, सना तक नहीं आती, सूरह फातिहा तक नहीं आता। अब इन लोगों के लिए क्या करना है? गलती किनकी है? मां बाप की गलती है। अपने बच्चों की फिक्र करें, जैसे हम दुनिया के सिलसिले में अपने औलाद की फिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे, मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी रहे, मेरे बच्चे को अच्छा जॉब मिले, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, मेरे बच्चे को अच्छा घर मिले। जब दुनिया के सिलसिले में इतनी फिक्र करते हैं, जब दुनिया के सिलसिले में अपने औलाद के बारे में इतनी फिक्र करते हैं, तो आखिरत के बारे में तो सोचना है, आखिरत के सिलसिले में ही सोचना है। दुनिया की कोई पढ़ी नहीं सिखाती कि मां बाप की खिदमत करो, दुनिया की कोई कॉलेज नहीं सिखाती कि आपको बाप के साथ अच्छा रहो, मां के साथ अच्छा रहो, नहीं सिखाते। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद मां बाप के साथ अच्छा रहने का हुक्म दिया है। मेरी इबादत करो, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के बाद तुम पर जरूरी है कि मां बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। ये कौन सिखाएंगे? ये इस्लाम सिखाएगा। ये नमाज, ये इस्लाम, ये मसाजिद से, ये मदारिस से ये तालीम मिलेगी। दुनिया में जो तालीम हासिल कराना चाहते हैं कराओ, डॉक्टर बनाना चाहते हैं बनाओ, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं बनाओ, जो बनाना चाहते हैं बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसको मोहम्मदी बनाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर चलने वाला बनाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं नमाज में खड़ा रहूं, मेरी मां मुझे मोहम्मद कहकर बुलाएगी तो मैं नमाज को तोड़कर मेरी मां की तरफ चला जाऊंगा। ऐसी तालीम मेरे आका ने दी है, ऐसी तालीम मेरा इस्लाम देता है। लेकिन आज हम लोग अपने औलाद के सिलसिले में इतने गफलत हो गए कि बच्चा कॉलेज को जाता है, सुबह 9 बजे जाकर 10 बजे, सुबह 9 बजे जाकर शाम 4-5 बजे आता है, मालूम नहीं कि क्या कर रहा है, कब जा रहा है, कहां जा रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। दुनिया में रहने वाला हर आदमी, हर औरत, हर बड़ा अपने छोटे का जिम्मेदार है। वर्रजुलु फी अहलिही राइन व हुवा मसऊलन अन रइयतिही। आदमी घर का बड़ा आदमी
ये पूरे घर वालों का जिम्मेदार है। मेरा बेटा दीन से हट गया, मेरे बेटे के अंदर शराब पीने की आदत आ गई, मेरे बेटे के अंदर बुरी चीजें आ गई, मेरे बेटे के अंदर मां बाप को ना मानने की चीज आ गई, इसकी वजह कौन है? हम सोचे क्या बचपन से हमने अपने बच्चे की तरबियत की तरफ तवज्जो डाली? क्या हमने उसकी तरबियत की तरफ सोचा? अगर बचपन से ही हम बच्चे की तरबियत की तरफ दौड़ेंगे, उसकी फिक्र करेंगे। इसलिए मेरे उस्ताद मोहतरम यानी कि हजरत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद है, फरमाते हैं आज दुनिया में रहने वाले हर मां बाप अपने औलाद के सिलसिले में यह सोचते हैं कि मेरी औलाद, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। दुनिया का हर मां बाप, दुनिया के हर वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। इसलिए अब उनके लिए प्रॉपर्टी का इंतजाम, अब इसलिए उनके लिए अच्छा घर का इंतजाम सब करते हैं। क्यों? मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे अच्छा रहे, मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ये हर आदमी सोचता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले बहुत कम है कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद यहां से जाने के बाद उनका क्या होगा, वो सोचने वाले नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह होंगे कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद का क्या होगा सोचने वाले हैं, लेकिन हमारी औलाद जब दुनिया से जाएगी तो उनका आखिरत में क्या होगा वो सोचने वाले कोई नहीं है। उसकी फिक्र कौन करेंगे? उसकी फिक्र हम ही को करना है। अपने औलाद के दिलों में दीन की अजमत को पैदा करें, अपने औलाद के अंदर नमाज की अहमियत को पैदा करें, मां बाप की खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा कराए। मां बाप का दर्जा क्या है इस्लाम में? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। अब ये हम लोग बचपन से ही उसकी तरबियत करेंगे, बचपन से ही बताएंगे, वो इस पर चलेगा। जब एक रास्ता होता है अपनी औलाद को सही रास्ता दिखलाने का, वो उम्र होती है 5 साल से लेकर 15 साल के दरमियान। 5 साल से 15 साल के दरमियान हम अपनी औलाद को जैसी तरबियत करेंगे उसकी जिंदगी वैसे ही गुजरेगी। अब 5 साल से 15 साल तक हम गफलत में बरतते हैं, हम उसकी फिक्र नहीं करते, उसके दीन की फिक्र नहीं करते, उसके अखलाक की फिक्र नहीं करते, उसकी नमाज की फिक्र नहीं करते। अब 15 साल के बाद अब उसके अंदर कुछ समझ आती है, अब उसके अंदर कुछ दीन के, कुछ दुनिया की समझ, कुछ चीजें समझने लगता है। अब हम अगर उसको नमाज का हुक्म देने जाएंगे, दूसरी चीजों का हुक्म देने जाएंगे तो अब वो बात जल्दी नहीं मानेगा। इसलिए बचपन से ही, इसलिए कहते हैं दावत व तबलीग के अंदर एक बात बताई जाती है कि घरों में तालीम करो। छोटा दूध पीने वाला बच्चा है तो उसको गोद में रखकर तालीम करो, छोटे बच्चे हैं तो उसको तालीम में बिठाओ। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बिठाओ, माहौल का असर पड़ता है, जो चीज लग रही, जो चीज गुजर रही है उसका असर पड़ता है। अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक जरिया है घर की तालीम। अब घर के तालीम में उसको बिठाएंगे, हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात उसको समझ में नहीं आ रही, दूध पीने वाले बच्चे को क्या समझ में आएगा। लेकिन एक दिन 2 दिन अब से बात ठीक से बात करना नहीं आ रहा है। एक बच्ची के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में, 4 साल का बच्चा है, फजाइल आमाल की किताब उसके हाथ में दे दिया जाएगा तो वो कहेगी कि अभी तालीम करना है। कहां से आई ये बात? अब वो रोजाना तालीम में बिठाने की वजह से उसके अंदर ये बात आई। तो अपने बच्चों की तरबियत का जो वक्त है वो बचपन ही है। बड़े होने के बाद अपने बच्चों की तरबियत नहीं की जा सकती। बचपन से ही, छोटी उम्र से ही उसको बोलना कि ये बाप का ये दर्जा होता है, बाप की इतनी खिदमत करना चाहिए, बाप जन्नत का दरवाजा है। बेटे घर में आना हो तो दरवाजे की जरूरत है, दरवाजे के बगैर घर में कोई नहीं आ सकता। जन्नत में जाना है तो बाप की जरूरत है, बाप की खिदमत करो, बाप की रजामंदी को पालो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। मां को राजी कर लो, पूरी जन्नत मिल जाएगी। ये चीजें कब सिखाना है बच्चे को? बचपन से ही सिखाना है। अब जब बच्चा नौजवान बन जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर दीनदारी है, उसके अंदर अल्लाह का डर है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ है, उसके अंदर नबी के तरीके हैं, उसके अंदर नबी की अजमत है। दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको भेजो, दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको जॉब करने के लिए भेजेंगे, कारोबार करने के लिए भेजेंगे, तिजारत करने के लिए भेजेंगे,
अब वो अपने ईमान की, अपने आमाल की, अपने आंखों की, अपने कानों की खुद हिफाजत कर लेगा। वरना तो क्या होगा, मां बाप भेज देते हैं अपने बच्चों को, दिल में कटक पैदा होती है, दिल में फिक्र पैदा होती है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा बेटा कहां वहां जाकर क्या काम में मुब्तला है, नहीं मालूम। ये सोच, ये फिक्र, ये डर कब आएगी, जब हमारी औलाद की ठीक से तरबियत नहीं हो पाएगी, तब ये दिल के अंदर ये बात पैदा होगी। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को सही रास्ता दिखलाएंगे, वो जहां जाएंगे वहां के लोगों को ठीक कर आएंगे, वहां के लोगों को दीनदार बनाकर आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आदमी 7 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगह देंगे, अर्श के साए में जगह देंगे। उनमें से एक वो होगा वह शाबुन नशा फी इबादती रब्बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नौजवान उसको भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के नीचे जगह देंगे जिसकी नौजवानी इबादत में गुजरी हो, जिसकी नौजवानी मां बाप की बात को मानना इबादत है, मां बाप की खिदमत करना इबादत है, मां बाप को नाराज ना करना भी इबादत है। तो ये चीजें उसको समझाना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये चीजें बताए हैं कि अपने बच्चों की फिक्र करो। कुल्लुकुम मसऊलुन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई गलत काम करते हुए किसी को देखे, मेरे सामने एक गलत काम हो रहा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको। क्या मतलब इसका, हाथ से रोको का माना क्या, कि आपको अगर मारने की ताकत है, आपको अगर उससे हाथ से रोकने की ताकत है तो रोको। किसके लिए है ये, मैं बड़ा हूं, मैं बाप हूं, तो मैं मेरे बेटे को मारकर रोक सकता हूं, मैं मेरी बेटी को मारकर रोक सकता हूं, मैं मेरे छोटे भाई को मारकर रोक सकता हूं। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। ये अलग अलग दर्जे में अलग अलग माना है। तो जिन पर मेरा चल सकता है, जिन पर मेरा हाथ चल सकता है, जिन पर मेरी बात चल सकती है, उन लोगों को बुराई से रोकना हाथ से भी जरूरी है। हाथ से रोको, हाथ से मना करो, मारो उसे, क्योंकि मेरा बेटा है, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरा चलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसानिही। अब हाथ से तो ताकत नहीं है, अब जुबान से रोको। कौन, मां बाप गलत काम कर रहे हैं, मां बाप बुराई में मुब्तला है, मां बाप नमाज नहीं पढ़ते, मां बाप के अंदर दीनदारी नहीं है, अब उनको नरमी से बोलो, जुबान से रोको, जुबान से समझाओ, जुबान से बोलो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब ये भी नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकते, कोई बाहर वाला आदमी गुनाह का काम कर रहा है, बोलेंगे तो भी फितना, हाथ चलाएंगे तो भी फितना। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने दिल से फबिक़ल्बिही, अपने दिल से रोको। क्या दिल से, अपने दिल के अंदर बुरा तो मानो कि ये जो आदमी काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, दिल के अंदर इस बात को लेकर आना। आज दुनिया के अंदर क्या हो गया कि अपने बच्चों के सिलसिले में हम नहीं सोचते, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में हम सोचे, उसका टाइम टेबल देखें, वो कब उठता है, कब जाता है, कब कॉलेज से वापस आता है, क्या कर रहा है, किन लोगों से मिलता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आज अगर हम अपने औलाद की फिक्र नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आज तो हम देख रहे हैं औलाद को, एक दिन ऐसा वक्त आएगा अपने औलाद के अमाल को, अपने औलाद की जिंदगियों को देखकर खून के आंसू रोएंगे, लेकिन उस वक्त में वो आंसू कुछ काम नहीं आएंगे। अपने औलाद की फिक्र करे, उसके टाइम टेबल को बताए, उसको देखे। पढ़ाई के सिलसिले में आज खास तौर पर अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग से कमरा बनाकर देते हैं कि बच्चों के लिए अलग से उसके लिए रूम। क्यों है, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करता है, रात के 12-1 बजे तक मेरा बेटा पढ़ता है, उसके लिए एक रूम बनाकर दे दिया, वो पढ़ता है। ये गलती कभी भी मत कीजिए। जिसको भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको कमरा बनाइए, लेकिन अलग से रहने की इजाजत मत दीजिए।
दरवाजा हमेशा खुला रखकर रहने की उसको हिदायत दीजिए कि दरवाजा बंद कर मत पड़ना, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, जब चाहे हम अंदर आ सकते हैं, जब चाहे हम देख सकते हैं, वाकई हम भी देखें कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी तन्हा होता है, जब आदमी अकेला होता है, जब आदमी एक कमरे में हो जाता है, उसके साथ शैतान आ जाता है, उससे ऐसे अमाल कराता है जिससे आदमी गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह के नाराजगी का सबब बन जाता है, अल्लाह की लानत का सबब बन जाता है। इसलिए तन्हाई में अपने औलाद को कभी भी ना छोड़े। पढ़ने के बहाने पर आज दुनिया के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अलग से कमरा बनाकर दे रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा स्टडी करेगा, मेरा बच्चा वहां पर रहकर मेहनत करेगा। करो, उसके लिए सहूलत फराहम करो, उसको पढ़ाओ, लेकिन दरवाजा बंद कर अंदर पढ़ने की इजाजत कभी भी मत दीजिए। उसको बताइए कि तुम जितना चाहे पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन तुम्हारे पढ़ने के वक्त में यह दरवाजा खुला रहेगा, रात भर यह दरवाजा खुला रहेगा, जब चाहे हम यहां पर आ सकते हैं, जब चाहे हम यहां पर आकर तुमको देख सकते हैं। यह तालीम दे। अल्लाह के नबी 1400 साल पहले बता दिए, जब आदमी तन्हा रहता है, जब आदमी अकेला रहता है, वहां पर दूसरा शख्स शैतान आ जाता है, उसको गुनाहों में मुब्तला करा देता है, अल्लाह के नाफरमानी के काम उससे हो जाते हैं, अल्लाह के नबी के नाफरमानी उससे हो जाती है। इसलिए अपने औलाद की खास तौर पर फिक्र करे। उसमें से एक तो यह है, पढ़ने वाले तलबा हो, कोई भी हो, उनको फजर की नमाज की खास तौर पर आदत दिलाए। फजर की नमाज पढ़कर अब बच्चा जब कॉलेज को जाएगा तो उसके अंदर बरकत आएगी, उसका जहन खुलेगा, अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। नमाजों की पाबंदी अपने औलाद के अंदर डलाए कि नमाजों की पाबंदी करेगा तो उसके अंदर पूरी चीजें आ जाएगी, माँ बाप की फरमाबरदारी भी आ जाएगी, नबी के तरीकों पर अमल करना भी आ जाएगा। तो इसका खास तौर पर ख्याल रखे। तो आखिर में जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि जुमा के दिन जब नमाज को हम आते हैं तो सिर्फ जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाज को फर्ज नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर मर्द पर, हर औरत पर जो बालिग है, अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाजें फर्ज किया है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, जुमा में एक मरतबा नमाजें पढ़ते हैं और पढ़कर चले जाते हैं, जैसा कि अल्लाह को हमने कर्ज दिया था, वो कर्ज देने या लेने के लिए आए थे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े। आज दुनिया में कितना किसको टाइम नहीं है, जितना भी बिजी हो आराम से 5 वक्त की नमाज पढ़ सकता है। इसलिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी